والے چلے جاتے ہیں اور ان کی یادیں رہ جاتی ہیں۔ انور نے چھت کی کڑیاں شمار کرتے اسماعیل کے پاس بیٹھتے ہوئے افسردہ لہجے میں کہا۔ زلیخا کی موت کو ہفتہ بیت گیا تھا، تعزیت کرنے والوں کی آمد و رفت بھی قریباً ختم ہو چلی تھی۔ انور زیادہ تر وقت اسماعیل کی دلجوئی میں لگا رہتا۔ اس کے خیال میں اسماعیل نے زلیخا کی موت کا بہت اثر لیا تھا۔ اس کا یہ گمان درست ہو سکتا تھا اگر اسماعیل ایکے کی دی گئی ذہنی ٹریننگ کی مشقوں سے نہ گزر چکا ہوتا۔ اب اسے افسوس ضرور تھا مگر اتنا نہیں جتنا انور کو محسوس ہو رہا تھا۔ ادا، مجھے صرف ایک بات کا افسوس ہے کہ میں زلیخا کو یہ نہیں بتا سکا ہوں کہ میں نے اسے شادی کسی مجبوری کی بنا پہ نہیں کی تھی۔ کیا مطلب؟ انور کے لہجے میں حیرانی تھی۔ مطلب واضح ہے ادا، وہ اس قابل تھی کہ اسے شریک حیات بنانے والا اپنے مقدر پہ رشک کر سکے۔ قاضی شاہ، یہ گھرانہ ہمیشہ تیرا مکروس رہے گا۔ ہم نے تیری جھولی میں خوشیاں ڈالنے کی کوشش میں غموں کا اضافہ کر دیا ہے۔ ادا، آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ میری جھولی میں آپ نے نہیں کسی اور نے غم ڈالے ہیں اور وہ اس کا خمیازہ بھی بھگتیں گے۔ نہیں قاضی شاہ، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ زلیخا نہیں رہی، اب سارے جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ یوں بھی ہمارے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ وڈیرے کا مقابلہ کر سکیں۔ جواباً اسماعیل خاموش ہی رہا کہ زلیخا کا انتقام اس نے اکیلے ہی لینا تھا۔ اس سلسلے میں انور کی شمولیت اسے گوارا نہیں تھی۔ اگلے دن اس نے اپنے منصوبے پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ گھر سے وہ گوٹھ میں گھومنے کے بہانے نکل آیا۔ اس کا مطمع نظر خیردین کے متعلق معلومات کا حصول تھا۔ چہل قدمی کے انداز میں وہ سارے گاؤں میں گھومتا رہا۔ زلیخا کی تعزیت کے دوران گوٹھ کے زیادہ تر آدمی اس سے واقف ہو گئے تھے، اس لیے کافی لوگ اسے بڑے تپاک سے ملے تھے۔ خیردین کے گھر کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے بغور مشاہدہ کیا تھا۔ رات کے 2 بجے وہ گھر سے نکلا۔ صحرائی علاقے کے لحاظ سے یہ ایسا ٹائم تھا جب لوگ کی اکثریت خواب و خرگوش کے مزے لوٹ رہی ہوتی ہے۔ خیردین کے گھر تک وہ بغیر کسی حادثے کے پہنچ گیا تھا۔ گھر کی 4 دیواری نہ ہونے کے برابر تھی۔ صحن میں 4-5 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ خیردین کی چارپائی ایک سائڈ پہ تھی۔ وہ بغیر کسی دقت اسے پہچان گیا۔ اس کی چارپائی کے قریب جا کر اس نے خیر بخش کی کن پٹیوں پر مخصوص انداز میں دباؤ ڈالا۔ ذرا سا مچل کے اس نے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے۔ اگلے لمحے اسے کندھے پہ لادے وہ تیز قدموں سے گوٹھ سے باہر کے جانب روانہ ہو گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے پوچھ گچھ کے دوران کسی قسم کی مداخلت ہو۔ وزن کے ساتھ ریت کے اندر چلنا کافی مشکل ہوتا ہے، مگر اس جگہ اس کی ٹریننگ کام آئی اور وہ خیر بخش کو لیے کوٹ سے باہر نکل آیا۔ ایک مناسب جگہ دیکھ کے اس نے اسے نیچے پھینکا اور اس کے چہروں پہ تھپڑوں کی بارش کر دی۔ چند تھپڑ کھا کے ہی اسے ہوش آ گیا۔ میں کیا؟ کون ہو تم؟ کہاں ہوں میں؟ اس کے منہ سے بے ربط الفاظ نکلے۔ نہیں پہچانا؟ تمہارے اپنے کھیت ہیں اور مجھے تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ تم؟ قاضی شاہ، میں یہاں کیسے آ گیا؟ میں اٹھا کر لایا ہوں تاکہ اکیلے میں گپ شپ کر سکیں۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے، وہ منمنایا۔ میں نے کب کہا ہے کہ تیرا قصور ہے؟ قصور تو زلیخا کا تھا جس نے خود اپنی گردن کلہاڑی کے نیچے دی تھی۔ وہ چند لمحے اسماعیل کی طرف دیکھتا رہا۔ چاند کی روشنی میں اس کا چہرہ تو واضح نظر نہیں آ رہا تھا، البتہ اتنا اندازہ اسماعیل کو چل گیا کہ وہ کسی گہری سوچ میں ہے۔ جب وہ بولا تو اسماعیل کے اندازے کی تصدیق ہو گئی کہ وہ کسی نتیجے پہ پہنچ گیا ہے۔ قاضی شاہ، مجھے اپنے جرم کا اقرار ہے، لیکن بخدا اس کام کے لیے ہمیں وڈیرے نے مجبور کیا تھا۔ تمہارے ساتھ اور کون کون تھا؟ سچل، گاما اور غفورہ، یہ تینوں وڈیرے کے باڈی گارڈ ہیں۔ کہاں ملیں گے؟ وڈیرے کے ڈیرے پہ۔ خیردین، کوئی آخری خواہش ہو تو بیان کر سکتے ہو؟ اپنے لہجے کی وحشت خود اس کے لیے اجنبی تھی۔ ہاں ہے، میں چاہتا ہوں کہ وڈیرے کی موت کا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ کیا مطلب؟ اسماعیل کے لہجے میں حیرانی تھی۔ خیردین آپ دیدہ لہجے میں بولا۔ قاضی شاہ، میری بیٹی کی عمر 12 سال ہے جو 1 ہفتے سے وڈیرے کے پاس ہے۔ اس سے پہلے شازیہ کو بھی وہ اس حال تک لے آیا کہ آج
वो जो कुछ भी कर रही है मैं उसे मना नहीं कर सकता। अपनी मासूम बेटी उसके पास भेजते तुझे गैरत ना आई? बहुत आई गाजी शाह, बहुत ज्यादा, लेकिन अफसोस कि मैं कुछ कर नहीं सकता था। घटिया बहानेबाजी मत करो खैरू। गाजी शाह, हम उसके आदी हो गए हैं। वडेरे का हर हुक्म मानना हमारा दीन है। अदानूर जो इनकारी हुआ था तो वडेरे ने क्या बिगाड़ दिया उसका? उसकी बेटी जैसी बहन तो बिछड़ गई ना, मरवा दिया उसे उस बदजात की हिवस ने। बेवकूफ, वो तो एक ही लम्हा मरी है, जबकि तुम्हारी बेटी हफ्ता हो गया है पल पल मर रही है। गाजी शाह, अगर तू चाहे तो मैं वडेरे के खिलाफ तेरा साथ दे सकता हूँ। उसके बाद तुम बेशक जुलेखा की मौत का बदला ले लेना। बड़ी जल्दी ख्याल आया वडेरे से बदला लेने का। वो उसके तंजिया लहजे की परवाह न करता हुआ बोला, हाँ गाजी शाह, हम में इतना हौसला नहीं कि वडेरे के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकें, लेकिन तुझे देखकर ये जुर्रत हो रही है कि हमें वडेरे का मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि नादिया से छोटी मेरी 2 बेटियां और हैं। एक की उम्र 10 साल और दूसरी 8 साल की है, और अगर मैं खामोश रहा तो उनके साथ भी शाजिया और नादिया वाला हशर होगा। इसलिए बेहतर यही है कि वडेरे के खिलाफ तेरे साथ मिल जाऊं। ज्यादा से ज्यादा मौत ही आएगी ना, तो मरना तो तेरे हाथों से यूं भी है। कुछ करके तो मरूं, कम अज कम मरते वक्त मेरे दिल में ये इत्मीनान तो होगा कि मेरी बेटियां अब इस मरदूद की दस्तरस से महफूज हैं। मुझे कैसे इतबार आए पाक परवरदिगार और सोने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता तो मानोगे ना? तेरे गंदे मुंह से ये मुकद्दस नाम अच्छे नहीं लगते खैरू। गाजी शाह, मैं तेरा मुजरिम हूँ, माफ़ी नहीं मांग रहा, मोहलत चाहता हूँ। आज ये ज़िंदगी बेफ़ायदा ख़त्म हो रही है, किसी मकसद पे कुर्बान करने दो। तुझे खुदा का वास्ता, सोने रसूल का वास्ता, जुलेखा का वास्ता। खैरू ने उसके सामने हाथ बांध दिए। खैरू, तुझे बहुत देर हो गई है। अगर तू इस हालत में आने से पहले मेरे पास आकर अपने जुर्म का इकरार कर लेता तो शायद मैं तुझे माफ़ करने का सोच सकता। गाजी शाह, जैसे तेरी मर्जी हो उसी तरह मारना। बस थोड़ी सी मोहलत, एक दिन की सुबह तक की। नामुमकिन है, इस्माइल के लहजे में कतईयत थी। ठीक है गाजी शाह, लेकिन एक वादा करो। क्या? मेरी बेटी को बताना कि उसका वालिद वडेरे से लड़ता हुआ मारा गया। इतना तो कर लोगे ना? अगर वडेरे को जहन्नम रसीद कर सका तो कह दूंगा, रब तुझे कामयाब करे गाजी शाह। कहते हुए उसने आंखें बंद कर लीं, गोया इस्माइल के लिए इशारा था कि वो अपना काम कर सकता है। इस्माइल ने अपने लिबास में छुपाई लंबे फल वाली छुरी निकाली जो वो बावर्ची खाने से उठा लाया था। उसका हाथ सर से बुलंद हुआ, लेकिन उससे पहले कि वो नीचे आता उसके ज़हन में एक के अल्फाज गूंजे, कोई भी काम करने से पहले जज्बात को करीब ना फटकने देना, खूब सोचकर अपना फायदा मद्देनजर रखकर काम करना, क्योंकि जिंदगी की मिसाल वन वे रोड की तरह है, जहां तुम पीछे मुड़कर देख तो सकते हो, जा नहीं सकते। जज्बाती फैसले अमूमन दिल करवाता है, और याद रखो दिल उल्टी साइड पे होता है, कभी भी सही मशवरा नहीं देता। जिंदगी के फैसलों में हमेशा दिमाग की पैरवी करो। उसका उठा हुआ हाथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे आया। उसे खैर बख्श के अंदाज में सच्चाई झलकती हुई नजर आ रही थी, और अगर उसका ये अंदाजा ठीक था तो वो उसके बहुत काम आ सकता था। वो घर का भेदी था, वडेरे के यहाँ उसका आना जाना लगा रहता था, और वो इस काम की कई गुना आसान कर सकता था। खैरदीन, उसने आहिस्ता से पुकारा। वो ज़ेरे लब कुछ बड़बड़ा रहा था, शायद कलमा पढ़ रहा था। झट आंखें खोलता हुआ बोला, जी, अगर तुमने धोखा देने की कोशिश की तो याद रखना मैं तेरी आंखों के सामने तेरे सारे घर वालों को ज़िबा करूंगा। मम, मैं धोखा? उसे इस्माइल की बात की समझ नहीं आई थी। हाँ, धोखा, क्योंकि मैंने फ़िलहाल तेरे कत्ल का इरादा तर्क कर दिया है। गाजी शाह, रब सोना तुझे अपने मकसद में कामयाब करे। उसके लहजे में ज़िंदगी की रमक लौट आई थी। चल उठ, फिर चलते हैं, हमारे पास टाइम कम है। उसकी बात सुनकर वो उछलकर खड़ा हो गया। चलो साईं, उसके लहजे में अकीदत दर आई थी। वो उसी रास्ते पे वापस चल पड़े जिस पे थोड़ी देर पहले इस्माइल उसे कंधे पे उठा के लाया था।
मकानात का सिलसिला शुरू होते ही खैरदीन रहनुमाई के लिए खुद ब खुद आगे हो गया। साईं, अगर इजाज़त हो तो मैं घर से कुल्हाड़ी ले लूं। अपने घर के करीब से गुजरते हुए वो मुस्तफसर हुआ। ले लो, एक लहज़ा सोच के इस्माइल ने इस बात में सर हिला दिया। इजाज़त मिलते ही वो अपने घर में दाखिल हुआ और बगैर किसी ताखीर के कुल्हाड़ी के साथ बरामद हुआ। उनका सफ़र जारी रहा। ये वडेरे की हवेली है। एक बड़ी सी हवेली के करीब से गुजरते हुए खैरू आहिस्ता से बोला, मैं जानता हूँ मगर तुम उसे बाईपास कर रहे हो। हाँ, क्योंकि वो शाजो नादर ही यहाँ रात बसर करता है। उसकी ज़्यादा रातें अपने डेरे पे गुजरती हैं, जहाँ वो गांव की मासूम कलियों की इज्जतों से खेला करता है। खैरू के लहजे में दुनिया जहाँ का गमोसा था। इस्माइल ने उसकी बात पर कोई तबसरा करने की बजाय खामोश रहने को तरजीह दी। थोड़ी देर बाद वो वडेरे के डेरे के करीब पहुंच गए थे। ये डेरा किसी भी तरह हवेली से कम नहीं था। हवेली और डेरे की बनावट में बैरूनी दीवारों की ऊंचाई में कमी बेशी के अलावा कोई फर्क नहीं था कि डेरे की दीवारें हवेली के मुकाबले में कम ऊंची थीं। सामने वाले बड़े दरवाजे पे एक आदमी जाग के पहरा देता है, बाकी लोग आराम करते हैं। यूं भी वडेरे की हवेली या डेरे में घुसने का कोई सोच भी नहीं सकता। अच्छा, यूं है कि हम दोनों सामने से जाएंगे। तुम चौकीदार से दरवाज़ा खुलवाओगे। यूं भी वो तुम्हें अच्छी तरह जानता है, इसलिए उसे शक नहीं होगा। उसके बाद मैं जानूं और मेरा काम। ठीक है। खैरू उसकी तरह सरगोशी में बोलते हुए डेरे के बड़े गेट की तरफ बढ़ गया। ठहरो, बात सुनो। अचानक एक ख्याल इस्माइल के दिमाग में बिजली के कोने की तरह लपका और उसने खैरदीन को आगे बढ़ने से रोक दिया। जी साईं, डेरे के अंदर कुत्ते हैं। अगर आपकी मुराद 4 टांगों वाले कुत्तों से है तो वो नहीं हैं। 2 टांगों वाले अलबत्ता 5-6 मौजूद होंगे। फिर यूं करो, दरवाजे की बजाय दीवार से अंदर जाते हैं कि दस्तक देने से कहीं तमाम जाग न जाएं, खामखा काम बढ़ा देंगे। नहीं साईं, गर्मियों की रात है, तमाम सैन में सोए होंगे। दीवार से अंदर जाते ही हम निगाहों में आ जाएंगे। बाकी जहाँ तक दस्तक देने का ताल्लुक है तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। कोई न कोई पैरे पे लाजमी होगा कि ये वडेरे का हुक्म है और जागने वाले के लिए हल्का सा इशारा ही काफ़ी होगा। पिछली तरफ से अंदर दाखिल हो जाते हैं ना, आखिर सामने के रुख तो आना ही पड़ेगा। चांद की रोशनी है, हम दूर से ही नज़र आ जाएंगे। काफ़ी तजर्बाकार दिख रहे हो, उसने दुखी लहजे में कहा। हाँ साईं, लड़ाई बड़ाई करना तो नहीं जानता, अलबत्ता चोरी चुकारी का माहिर हूँ। सारी जिंदगी इसी काम में गुजरी है, कभी अपने लिए और कभी वडेरे के लिए। और इस्माइल सर हिलाकर रह गया था। चंद लम्हों बाद वो बड़े दरवाजे के सामने थे। दरवाज़ा खोलो भाई, मैं हूँ खैरू। दरवाज़ा आहिस्ता से बजाकर वो हल्की आवाज़ में बोला। खैरू, खैर तो है? अंदर से भी धीमे लहजे में पूछा गया। और उसके साथ ही बगैर उसका जवाब सुने दरवाजे की जैली खिड़की खुल गई। वो खैरू की आवाज़ को अच्छी तरह पहचानता था कि उसने मज़ीद तस्दीक की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। खैरियत है गफूरे भाई, तुम ज़रा बाहर आके बात सुनो। अंदर ही आ जाओ ना। नहीं, अंदर आने का टाइम नहीं है, तुम जल्दी करो। खैरू ने बेचैनी जाहिर की। अच्छा, आ गया। वो झुक के खिड़की से निकलने लगा। इस्माइल इस वक्त दरवाजे से हट के खड़ा था। गफूरे को नजर नहीं आ रहा था और उसी लम्हे की ताड़ में था। उससे पहले कि वो मुकम्मल सीधा हो पाता, इस्माइल चील की तरह उस पे झपटा और एक हाथ उसके मुंह पे रख के बाजू गर्दन में डाल दिया। गफूरे अपनी जान छुड़ाने के लिए तड़पा, मगर इस्माइल के सेहतमंद बाजुओं के सामने उसकी एक न चल सकी। इस दौरान खैरू खामोश खड़ा उन्हें देखता रहा, यहाँ तक कि गफूरे ने हाथ पांव ढीले छोड़ दिए। इसकी लाश को दीवार के साथ लिटाकर इस्माइल मुस्तफसर हुआ। बाकी कहाँ होंगे? सब सैन में सोए हुए होंगे और वडेरा उसके लिए हवेली की छत पे सोने की जगह बनाई गई है। कहीं शोर की आवाज से वो जाग न जाए। लांती बेतहाशा शराब पीता है। उसके बावजूद ये अमकान मौजूद है कि वो शोर सुनकर उठ ही न जाए। वो गेट के सामने खड़े सरगोशियों में बात कर रहे थे। तो फिर क्या किया जाए? करना क्या है? अंदर घुसकर कुल्हाड़ियों से गर्दनें उतार देते हैं हरामजादों की। चलो फिर, इस्माइल ने कहा और वो खिड़की के रास्ते अंदर घुस गए।
डेरे का सहन काफी वसी था। अंदरूनी इमारत और गेट के दरमियान चारपाइयां बिछी हुई थीं, जिनमें सिर्फ एक खाली थी, जो गफूरे की ही हो सकती थी। इमारत का तर्ज तामीर सादा था। छत पे जाने के लिए चौड़ी सीढ़ियां बरामदे की एक साइड पे बनी हुई थीं। वो दोनों शाना बशाना चलते हुए सोए आदमियों के करीब पहुंच गए। सोने वालों की कुल्हाड़ियां सरहाने की सिमत चारपाइयों के पांव के साथ खड़ी थीं। खैरू के पास अपनी कुल्हाड़ी मौजूद थी। इस्माइल ने वहीं से एक कुल्हाड़ी उठा ली। इस्माइल ने एक आदमी की तरफ इशारा करके खैरू को उसे हलाक करने की जिम्मेदारी सौंपी और दूसरे की गर्दन का निशाना लेकर अपनी कुल्हाड़ी बुलंद की। दोनों की कुल्हाड़ियां आगे पीछे नीचे आईं और दो बंदों की गर्दनें आधी से ज्यादा कट गईं। दोनों के गले से एक तेज खरखराहट निकली और वो जोर जोर से हाथ पांव झटकने लगे। तीसरा बंदा चारपाइयों की चरचराहट से जाग गया था। कुक कौन है, क्या है? उसके मुंह से घबराई हुई आवाज निकली, मगर इस्माइल की कुल्हाड़ी ने उसे ज्यादा बोलने का मौका ना दिया। तेजदार कुल्हाड़ी ने उसके सर को तरबूज की तरह दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया था। चलो उस बड़े लांती के पीछे। उन्हें तड़पता छोड़कर खैरू सीढ़ियों का रुख करता हुआ बोला। इस्माइल को भी अंदाजा था कि इन तीनों के जिंदा बचने के अमकानात 100 में से 0 थे। वो तेजी से सीढ़ियां फलांगते ऊपर पहुंचे। सीढ़ियों के खात्मे पे एक छोटा सा दरवाजा था, जिसकी बुलंदी छत की 4 फुटी दीवार के बकदर थी। तमाम कमरों की छत इकट्ठी होने की वजह से एक कुशादा सहन की सूरत इख्तियार कर गई थी। वस्त में एक बड़ी मुसहरी रखी थी। उनके ऊपर पहुंचते ही एक कमसिन लड़की मुसहरी से नीचे उतरी। उसके बदन पे कपड़े का एक तार भी मौजूद नहीं था। बिलाशुबा वो खैरू की बेटी नादिया थी। वडेरा भी बगैर कपड़ों के बेसूद पड़ा था। अब्बा लड़की सिसकती हुई खैरू से आन लपटी। उसे एहसास ही नहीं था कि वो कपड़ों के बगैर है। शायद एक हिवस परस्त की हिवस ने उसके जहन से ये एहसास ज़ाहिल कर दिया था। इस्माइल उसके बदन से आंखें चुरा के मुसहरी की तरफ बढ़ा। मुसहरी के साथ रखी कुर्सी पे उसे जनाना कपड़े नजर आए, जो उसने उठाकर खैर दीन की तरफ बढ़ा दिए। इसे कपड़े पहनाओ। कपड़े उसके हाथ से लेकर खैरदीन अपनी बेहाल बेटी को पहनाने लगा, जो वालिद को देखकर जब्त के सारे बंधन तोड़ बैठी थी। खैरू, इसे नीचे ले जाओ, मैं जरा वडेरे से 2 हाथ कर लूं। मगर साईं, वो शायद अपने हाथ से वडेरे का सर उतारना चाहता था, इसलिए उसने एतराज करने के लिए लब हिलाए, मगर इस्माइल कता कलामी करते हुए बोला, खैरू, तुमने यहीं रहना है जबकि मैंने चले जाना है, इसलिए वडेरे को कत्ल करना बाद में तेरे लिए मुश्किलात खड़ी कर देगा। ये मासूम राज रखने के काबिल नहीं है। इस्माइल का इशारा नादिया की तरफ था। आपने भी तो जुलेखा का बदला नहीं, मैंने माफ कर दिया। इस्माइल ने उसकी बात मुकम्मल ना होने दी। एक लम्हा सोचने के बाद खैरू बेटी को साथ लिए सीढ़ियां उतरता चला गया। इस्माइल ने मेज पे रखा पानी से भरा जग उठाकर वडेरे पे उंडेल दिया। उसके होंठों से बेमैनी सी आवाज निकली और वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। चंद लम्हे बदहवासी के आलम में दाएं बाएं देखने और सर झटकने के बाद वो कुछ बोलने के काबिल हुआ। कौन हो तुम? उसके लहजे का तना खत्म नहीं हुआ था, मगर इस्माइल उसकी बात का जवाब देने की बजाय खामोशी से उसे घूरता रहा। तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आई? वडेरे ने उठने के लिए पांव मुसहरी से नीचे लटकाए। यकदम उसे अपनी बरहनगी का एहसास हुआ और उसके साथ ही सूरत हाल की संगीनी उस पे वाज़े हुई। नादिया कहाँ है? तुम यहाँ कैसे आ गए? कहाँ मर गए सब? हैदर अली शाह नाम तो बहुत अच्छा है, मगर काम शायद इबलीस भी तेरी शागिर्दी पे फख्र करे। इस्माइल का वहशत से पुर लहजा ऐसा नहीं था कि वडेरे पर असर न करता। तब तुम गालबन जुलेखा के घर वाले हो। वडेरा मुकम्मल हवास में आते ही उसे पहचान गया था। खूब पहचाना, तेरे गिरगे तो न पहचान सके, गरीब बेखबरी में मारे गए। जवान, शायद मुझसे तुम वाकिफ नहीं हो। वडेरे ने ज़ेरी बदन पे चादर लपेट ली थी। तुम जैसे इबलीस से कौन वाकिफ नहीं होगा? ये कहते ही इस्माइल पीछे मुड़ा कि उसे पुश्त की जानिब से कदमों की चाप सुनाई दी थी, मगर खैरू को देख के उसके तने हुए असाब ढीले पड़ गए। खैरू, बड़े टाइम पे आए हो। वडेरा खुशी से चहका, मगर खैरू उसे नज़रअंदाज करता हुआ इस्माइल से बोला, साईं,
मैं बेटी को नीचे एक कमरे में बिठा आया हूँ क्योंकि इस मलऊन की मौत का मंजर मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। चलो फिर बिस्मिल्लाह पढ़ो। इस्माइल ने उसे दावत दी। गर्दन और सर को बचा के उसे कुल्हाड़ी सीधी करते देख के वो जल्दी से दोबारा बोला, तब तुम अच्छा नहीं कर रहे। गाजी शाह वडेरे के लहजे में खौफ का अंसर नुमाया था, मगर इस हालत में भी उसने खैरू को दरखोर एतना न समझा था। खैरू उसकी बात पे तवज्जो दिए बगैर जारहाना अंदाज में उसकी सिमत बढ़ता रहा। वडेरा घबरा के उठ खड़ा हुआ। खैरू तुम होश में तो हो? खैरू का जारहाना अंदाज देखते हुए वो घबरा के चिल्लाया, मगर खैरू ने मुतलक उसकी बात पे तवज्जो ना की और उसके करीब जाके अचानक एक जोरदार वार उसकी पिंडली पे किया। एक करीह चीख वडेरे के होंठों से बरामद हुई और वो नीचे गिर गया। ठहरो खैरू, पहले इसका मुंह बांध लेते हैं। इसकी आवाज सुनकर कोई आ न जाए। साईं कोई भी नहीं आता। इस डेरे से चीखो पुकार की आवाज आना मामूल की बात है। कभी मासूम बच्चियों की चीखें बुलंद होती रहती हैं तो कभी मजलूम जवानों की। गोठ में कभी किसी ने कान नहीं धरे, आज इसका नंबर आया है तो भला कौन सुनेगा। ये कहते ही उसने तेज धार कुल्हाड़ी बुलंद की। इस मर्तबा वडेरे के दूसरे पांव का पंजा उसके पांव का हिस्सा न रहा। वडेरे के मुंह से निकलने वाली चीख पहले से बढ़कर थी। खैरू के दिल में नपने वाली नफरत को इजहार का मौका हाथ आ गया था। मत मारो, खुदा के लिए माफ कर दो मम। मैं वडेरे का सारा वजूद लर्जना शुरू हो गया था। खैरू ने उसकी इसकी चीखों पुकार पे ध्यान दिए बगैर एक मर्तबा फिर कुल्हाड़ी बुलंद की। निशाना वडेरे का हाथ था। वडेरा शिद्दत दर्द से जोर से उछला और खैरू की तरफ बढ़ने के इरादे से उठने की कोशिश की, मगर उसकी अधकटी पिंडली और कटा हुआ पंजा उसका साथ न दे सका और वो मुंह के बल नीचे गिर गया। खैरू की कुल्हाड़ी अपने तसलसल में बुलंद होके नीचे आई। इस मर्तबा हदफ वडेरे का दायां बाजू था, मगर मुंह के बल गिरे वडेरे ने उठने की कोशिश की। मजरूब हाथ उसका बोझ न सहार सका और वो एक मर्तबा फिर गिरा। गिरते हुए उसकी पोजीशन बदली हुई। खैरू की नीचे आती कुल्हाड़ी का फल बजाय उसके बाजू पे लगने के उसके सर में उतर गया। उसके मुंह से निकलने वाली आखिरी चीख बहुत भयानक थी। खैरू ने आखिरी लम्हे तक उसके वजूद पे कुल्हाड़ी के वार जारी रखे। ये वो नफरत थी जो जाने कब से उसके अंदर पल रही थी। ये वडेरे की खुशकिस्मती थी कि खैरू जल्दबाजी में उसे मौत काट उतार चुका था, वरना शायद वो खुद मौत की भीख मांगता। इस दौरान इस्माइल खामोश तमाशाई बना रहा। वडेरे के वजूद की हरकत थमते ही उसने खैरू का बाजू पकड़कर उसे रोक दिया। बस करो खैरू, अब ये जहन्नम वासिल हो गया है। उसकी आवाज गोया खैरू को होश की दुनिया में ले आई। बड़ी जल्दी जहन्नम वासिल हुआ है साईं, गलती तेरी अपनी है मियाँ के तुझसे उसके बाजू और सर में फर्क न रखा जा सका। अब क्या करे साईं? अब यूं करो कि अपनी बेटी को घर ले जाओ। मैं भी जाता हूँ। अदा अनवर से रुखसत लेकर शहर का रुख करूँगा। तुम सुबह वडेरे के कत्ल का इल्ज़ाम मेरे सर मोड़ देना। वजह वही जुलेखा की मौत बताना। अपने घर वालों को भी असल बात बताने की ज़रूरत नहीं। लोगों को कहना कि मैं भी रात को डेरे पे ही सोया था और मेरे हाथों से तुझे तेरी बेटी ने बचाया है। और देखा जाए तो ये मुबालगा नहीं, हकीकत है कि तुझे तेरी बेटी की वजह से माफ़ कर रहा हूँ। साईं अल्लाह आपको इज्जत दे। ये बता दो शहर तक कैसे जाएंगे आप? पैदल? नहीं, शहर काफ़ी दूर है। आप ऐसा करें, इस डेरे पे वडेरे की 3 उम्दा नस्ल की ऊँटनियाँ मौजूद हैं। उनमें से एक तो ऐसी है कि तेज़ रफ्तारी में अपना सानी नहीं रखती और असील इतनी है कि कोई बच्चा भी आसानी से उस पर सफ़र कर सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि आप उसी पे आज़म सफ़र हों। चलो फिर यूं करो, अपनी बेटी को घर पहुंचाकर ये ऊँटनी तैयार करके अदा अनवर की ज़मीन पे पहुंचो। मैं अदा से अलविदाई मुलाकात करके वहीं पहुंचता हूँ। पानी के 2 मचकीज़े और कुछ खाने को भी साथ रख देना। आप फिक्र ही ना करें साईं, खैरूपुर एतमाद लहजे में बोला। सीढ़ियाँ उतरकर खैरू का रुख तो उस कमरे की जानिब हो गया जहाँ उसने अपनी बेटी को बिठाया था, जबकि इस्माइल तेज कदमों से अनवर के घर की तरफ रवाना हो गया। वहाँ से रुखसत होते वक्त अनवर को मिले बगैर जाना उसे मुनासिब न लगा था।
اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ کہانیگر چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔